Hello everyone, welcome back. So this will be the last video of the series where we are discussing last year's agriculture paper. So we have discussed till horticulture, and in this video we'll discuss about plant protection, single question from biotechnology, plant physiology and miscellaneous part or general awareness. Now starting with entomology. Now normally if you analyze the distribution of marks of past few years, you will see that entomology and pathology, they carry about same weightage, 20 to 25 or about 20 marks each. So you will get one or two questions from entomology or one or two questions from pathology. Normally you will get a pest or a disease, a question from general entomology and a question from general pathology, also a question on an insect pest or a question on a particular disease of a crop. Sometimes they might combine both pathology and entomology and ask like for example, write major pests and diseases of mango. Write the control measures of major pests and diseases of mango. They will combine both the subjects. So that might also be done. So coming to last year's paper, entomology, classify pesticides according to the target pest, not specifically entomology but general pesticides दिए है तो I have just classified it under entomology. Otherwise plant protection बोल सकते हो दोनों को मिला के. You can call them as plant protection. So 35 marks was allotted to plant protection. So पर्टिकुलरली एंटोमोलॉजी वाला क्वेश्चन नहीं है बट मैं डाल दिया उसमें. प्लांट प्रोटेक्शन बोल सकते हो दोनों को मिला के, ठीक है. सो क्लासिफाई पेस्टिसाइड्स अकॉर्डिंग टू टारगेट पेस्ट, फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट, डिस्क्राइब द ट्रेंड इन पेस्टिसाइड कंजम्पशन इन इंडिया. सो दो पार्ट्स हैं इसमें. फर्स्ट पार्ट में यू हैव टू क्लासिफाई पेस्टिसाइड्स अकॉर्डिंग टू द टारगेट पेस्ट. नाउ व्हेन वी से पेस्ट, द डेफिनेशन ऑफ पेस्ट इज वेरी ब्रॉड. ओके, सो पेस्ट का मतलब इंसेक्ट पेस्ट ही नहीं होता है. एनी ऑर्गेनिज्म विच कॉजेस लॉस, economic loss to human or injury. It can be health. The injury can be related to health or economic. So या क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, या फिर जैसे मॉस्किटो है, मलेरिया, it causes malaria in humans. So that is also, it is a vector, right? So mosquito directly health को injury कर रहा है, या फिर जो insect pest है, they are destroying crops but indirectly economically harming humans. So any organism which causes injury to humans either economically or health wise, उसको pest बोल सकते हो तुम, ठीक है. So classify pesticides according to the target pest. तो target pest क्या क्या है? Organism, any organism ना, it can be insect pest, insecticides, it can be fungus, disease cause कर रहा है, fungicides, it can be weeds competing with the plants, तुम्हारे yield loss हो रहा है उससे, तो weedicides या herbicides. rodenticides, rodent से चूहा आके तुम्हारा क्रॉप को डैमेज करता है, rodenticides. it can be nematicides, nematodes. सो इंटरनेट पे जाओ, क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स अकॉर्डिंग टू टारगेट पेस्ट मारो, इमेजेस में जाओ, बहुत सारे स्लाइड्स मिल जाएंगे, वहां से तुम बना लो एक डायग्राम, राइट. देन सेकंड पार्ट, ये थोड़ा सा तुमको टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलेगा. सो तुम थोड़ा रिसर्च पेपर ढूंढोगे तो मिल जाएगा. फर्स्ट सेकंड पेज पे ही इंटरनेट पे तुमको मिल जाएगा ये ट्रेंड, पेस्टिसाइड कंजम्पशन ट्रेंड्स इन इंडिया. सो कंजम्पशन ट्रेंड में आई हैव नोटेड डाउन सर्टेन, थोड़े पॉइंट्स मैंने नोट करके लाया हूँ, यू कैन नोट डाउन देम. सो पेस्टिसाइड कंजम्पशन ट्रेंड्स अगर तुम देखोगे तो सो टॉप 5 स्टेट्स विच कंज्यूम पेस्टिसाइड्स अगर तुम देखोगे तो फर्स्ट पे आता है महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब,
तेलंगाना, हरियाणा, ये टॉप 5 स्टेट्स हैं जो पेस्टिसाइड कंज्यूम करते हैं, सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड कंज्यूम करते हैं. ओके, देन बायोपेस्टिसाइड्स कंज्यूम करने वाले टॉप 5 स्टेट्स कौन से हैं? यानी बायोपेस्टिसाइड्स ये ओवरऑल है पूरा सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स मेनली, बट पूरा मिला के पर्टिकुलरली बायोपेस्टिसाइड जो सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं दे आर राजस्थान, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु and Kerala. These are the top 5 states which consume biopesticide more. ये बायोपेस्टिसाइड ज़्यादा कंज्यूम करने वाले स्टेट्स हैं. इसका मतलब ये नहीं है ये सिंथेटिक पेस्टिसाइड से ज़्यादा बायोपेस्टिसाइड कंज्यूम कर रहे हैं, नहीं नहीं, आई डोंट मीन टू से दैट. सिंथेटिक पेस्टिसाइड ही ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, बट ओवरऑल इंडिया में बायोपेस्टिसाइड कंज्यूम करने वाले टॉप स्टेट्स कौन से हैं? इनमें भी सिंथेटिक पेस्टिसाइड ही ज़्यादा यूज होता है, लेकिन बायोपेस्टिसाइड अगर तुम देखोगे तो सबसे ज्यादा क्वांटिटीज में यूज करते हैं ये वाले स्टेट्स कंपेयर टू अदर स्टेट्स. अगर आप ओवरऑल सिंथेटिक पेस्टिसाइड का कंजम्पशन देखोगे तो इट इज अराउंड 0.3 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टार. ये 2015 का डेटा है मेरे पास, मुझे रीसेंट वाला मिला नहीं. चेक ऑन द इंटरनेट अगर तुमको रीसेंट वाला अगर मिलता है तो. मुझे रीसेंट वाला नहीं मिला, बट 2015 का डेटा है. 0.3 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट, टेक्निकल ग्रेड की बात कर रहा हूं मैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट, फॉर्मुलेशन नहीं, एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टार. ओवरऑल इंडिया का एवरेज पेस्टिसाइड कंजम्पशन है ये 0.3 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टार. अगर आप पेस्टिसाइड्स में सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड कौन सा वाला कंज्यूम होता है? सबसे ज्यादा इंडिया में कंज्यूम होता है इंसेक्टिसाइड्स, उसके बाद फंगिसाइड्स, थर्ड इज हर्बिसाइड्स. बट हर्बिसाइड का कंजम्पशन जो है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है. पहले क्या होता था, बिकॉज लेबर जो होता, लेबर चीप था तो लेबर से वीडिंग कराते थे, बट नरेगा ये सब आने के बाद एग्रीकल्चर लेबर का कॉस्ट बढ़ गया. सो अब हर्बिसाइड्स का कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है. फॉरेन कंट्रीज, अगर वेस्टर्न कंट्रीज की बात करोगे तो हर्बिसाइड सबसे ज्यादा यूज होता है, बट इंडिया में पहले लेबर फोर्स ज्यादा अवेलेबल था, चीप था तो हाथों से वीडिंग कराते थे, मैनुअल वीडिंग. बट अब मैनुअल वीडिंग पॉसिबल नहीं है, बिकॉज पूरा फील्ड में बैठोगे तो एक हफ्ते वो वीडिंग ही करते रहेंगे और पैसा वेस्ट हो जाएगा. इसलिए हर्बिसाइड का कंजम्पशन जो है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है. ओके, नाउ आउट ऑफ टोटल जितना भी पेस्टिसाइड यूज होता है, पेस्टिसाइड कंज्यूम करते हैं उसका ओनली, और सॉरी, जितना भी पेस्टिसाइड इंडिया में प्रोड्यूस होता है, टोटल पेस्टिसाइड, सिंथेटिक, बायोपेस्टिसाइड सब मिला के, उसका सिर्फ 3% ही बायोपेस्टिसाइड है. आउट ऑफ टोटल पेस्टिसाइड प्रोडक्शन ओनली 3% इज बायोपेस्टिसाइड प्रोडक्शन. देन तुम्हारे जो टोटल पेस्टिसाइड कंजम्पशन है, टोटल पेस्टिसाइड कंजम्पशन का 70% जो पेस्टिसाइड कंज्यूम होता है वो टॉप 8 स्टेट्स ही कंज्यूम कर लेते हैं. 70% इंडिया का पेस्टिसाइड जो भी इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है, 70% इवन ओवरऑल कंज्यूम जो हो रहा है, टोटल पेस्टिसाइड कंजम्पशन उसका 70% कंज्यूम सिर्फ टॉप 8 के स्टेट्स ही कर लेते हैं. और ना क्रॉप्स अगर देखो तो सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड कंज्यूम करने वाला क्रॉप जो है पैडी. सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड कंज्यूम करने वाला क्रॉप है पैडी, विच इज 26 to 28% जो पेस्टिसाइड कंज्यूम होता है वो पैडी में कंज्यूम होता है. नेक्स्ट क्रॉप जो है दैट इज कॉटन. पैडी के बाद नेक्स्ट क्रॉप इज कॉटन, विच कंज्यूम्स 18 to 20% ऑफ द पेस्टिसाइड्स. टोटल पेस्टिसाइड्स जो है उसमें से 18 to 20% कॉटन में जाता है. तो टॉप 2 क्रॉप्स. देन अभी इंडिया में 292 पेस्टिसाइड्स रजिस्टर्ड है. ओके, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमिटी
they are responsible for registration of pesticides. Currently there are 292 pesticides registered in India as of 2019 2019-20 to 292 pesticides. उसमें से 104 पेस्टिसाइड्स ऐसे हैं जो बाकी कंट्रीज में बैंड है वेस्टर्न वर्ल्ड में, पर इंडिया में अभी भी प्रोड्यूस हो रहे हैं. वी आर स्टिल प्रोड्यूसिंग इट. ओके, देन कमिंग टू इंपोर्ट. हम लोग इंपोर्ट जो पेस्टिसाइड्स करते हैं, मेनली वी इंपोर्ट इंसेक्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स. इंसेक्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स हम लोग सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, एंड वी इंपोर्ट फ्रॉम चाइना एंड जर्मनी. कमिंग टू एक्सपोर्ट्स, सबसे ज्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं फंगिसाइड्स. ओके, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं फंगिसाइड्स. देन herbicides, then insecticides. Destination is Brazil, USA and France. Note down the data जो दे रहा हूं ना, वरना अलग अलग जगह से ढूंढना पड़ेगा. Right, so that was regarding pesticide consumption trends. ट्रेंड क्या चल रहा है पूछ रहे हैं. हर्बिसाइड का ऊपर है, कितना यूज हो रहा है हमारा. सी देर आर कंट्रीज विच यूज हायर डोसेज देन अस. हमसे ज्यादा डोसेज यूज करते हैं. बहुत सारे कंट्रीज हैं, ताइवान, कोरिया, चाइना, दे यूज मोर. वियतनाम हमसे ज्यादा यूज करते हैं. बट मेन चीज क्या है ना पेस्टिसाइड कंजम्पशन में, लेबल पढ़ना बहुत जरूरी है. बिकॉज वन पेस्टिसाइड विच इज रजिस्टर्ड ऑन ए पर्टिकुलर क्रॉप, अगर सपोज एक पेस्टिसाइड है एक्स, इफ इट इज रजिस्टर्ड ऑन टोमेटो, यू कैनॉट यूज दैट ऑन सम अदर क्रॉप विच इज नॉट रजिस्टर्ड. आई मीन फॉर विच द पेस्टिसाइड इज नॉट रजिस्टर्ड. टोमेटो में रजिस्टर्ड है, सपोज सिर्फ टोमेटो के लिए है, लेकिन वो पेस्टिसाइड हाँ कीड़ा ही तो मार रहा है, सब में मार सके. इंसेक्टिसाइड है, टोमेटो में मार रहा है तो ओकरा में भी मारेगा, भिंडी में भी मारेगा. टोमेटो के लिए रजिस्टर्ड है, भिंडी के लिए रजिस्टर्ड नहीं है. वो पेस्टिसाइड जो है उसका मेटाबॉलिज्म भिंडी में कैसा है वो स्टडी नहीं की है. सो यू कैन नॉट यूज दैट ऑन दोज. सो हम लोग कितना कम डोसेज यूज करके भी इतना शोर इसलिए मचता है बिकॉज लेबल ढंग से कोई नहीं पढ़ता है, एंड वी डोंट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. लेबल की पेस्टिसाइड लेबल जो है उसको ढंग से फॉलो नहीं करते हैं. तो दैट वाज अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन. पैथोलॉजी में है लिस्ट बायोटिक एंड एबायोटिक कॉजेज ऑफ प्लांट डिजीजेस. नाउ डिजीज कैन बी बिकॉज ऑफ ए पैथोजन और इट कैन बी बिकॉज ऑफ एबायोटिक कंडीशंस, aberrant weather conditions, high temperature, low temperature, moisture stress. Okay, so न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी, इनको हम लोग फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बोलते हैं, विच आर बिकॉज ऑफ एबायोटिक कंडीशंस. ओके, सो लिस्ट बायोटिक एंड एबायोटिक कॉजेस ऑफ प्लांट डिजीजेस. अब बता दो, बायोटिक में बहुत सारे रीजंस हैं. देयर कैन बी सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजेंस, वायरस, फंगस, नेमाटोड्स. ओके, देन एबायोटिक फैक्टर्स में भी है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी. एग्जांपल्स दे सकते हो तुम, जस्ट गिव 1 or 2 एग्जांपल्स at every place. Then give an account of the classification of major physiological process affected by diseases and symptom types. तो क्या क्या physiological processes affect हो रहे हैं by the attack of pathogen. So both biotic and abiotic. First let us see what are the physiological process affected by pathogen. Now whenever host pathogen interaction is there, if the host is susceptible, there are several physiological processes which can be affected. Like for example, कोई fungal disease है, leaf पे, leaf spots. Okay, so most of the pathogens they alter the carbohydrate metabolism. Photosynthesis को affect करते हैं. They alter the
carbohydrate metabolism and affect photosynthesis. Then leaf spots या तुम्हारा blight, all those symptoms can be written under that particular category. Then obviously water relations will be affected because of host pathogen interaction, especially if the host is susceptible. Now wilting हो गया या root rot हो गया. Now plant will not be able to absorb water in that case when the root is damaged. So plant water relations are altered. Wilting symptoms दिखाई देगा, okay, because it is not able to absorb water. उसके बाद hypersensitive reaction, right? So during the host pathogen interaction, hypersensitive reaction दिखा सकता है. Reactive oxygen species, superoxide molecules will be produced which can be damaging to the cell membrane, or it may also cause cell death. So that is another case. Then they also alter the hormonal balance, which may cause abnormal cell growth, tumors, for example tumors आ सकते हैं. ऑक्सिन, साइटोकिनिन, गिबरेलिन का बैलेंस बिगड़ जाता है, उसके कारण ट्यूमर्स आ सकते हैं, पूरा स्टंटिंग हो सकता है प्लांट. देन कार्बन मेटाबॉलिज्म तो बोला ही है. देन उसके साथ साथ एंजाइम्स, बिकॉज दे अल्टर द carbohydrate metabolism and also the enzymes which are responsible for the carbohydrate metabolism. तो बायोटिक में ये पॉइंट्स, तो एबायोटिक में अगेन एसेंशियल एलिमेंट्स हैं. इफ देयर इज डेफिशिएंसी इट विल अफेक्ट, सपोज नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन डेफिशिएंट है, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी से क्लोरोसिस होगा, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी नहीं होगा तो क्लोरोफिल सिंथेसिस नहीं होगा, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होगा तो आरएनए, डीएनए सारा, बिकॉज नाइट्रोजन इज एवरीवेयर, राइट. फॉस्फोरस डेफिशिएंसी है तो अगेन वेर एवर फॉस्फोरस इज इन्वॉल्व वो सारे प्रोसेस हो जाएंगे. पोटेशियम है, इट एक्टिवेट्स मेनी एंजाइम्स, अगेन एंजाइमेटिक एक्टिविटी इफेक्ट होगा. सो एग्जाम्पल्स के साथ दो, एग्जाम्पल्स दोगे तो मार्क्स ज़्यादा मिलेगा. वेर एवर यू राइट सम सेंटेंस, कुछ अगर तुम लिख रहे हो, कुछ तुमने एक पॉइंट बनाया लिखा है, उसके नीचे एक एग्जाम्पल दे दोगे तो जस्टिफाई होता है. ओके. देन बायोटेक्नोलॉजी में क्वेश्चन है व्हाट, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, एंड एग्जाम्पल्स देने के लिए यहाँ पर तुम गिव एन अकाउंट ऑफ देयर यूज इन मैनेजमेंट ऑफ इंसेक्ट, पेस्ट, डिजीज एंड वीड्स. तो हर जगह पर एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल दे सकते हो. इंसेक्ट पेस्ट में बीटी कॉटन का एग्जाम्पल दे दो, वीड्स में सोयाबीन का है ना, राउंडअप रेडी, वो वाला एग्जाम्पल, ग्लाइफोसेट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है. डिजीज में देर आर सेवरल केस स्टडीज. So there are papaya varieties which have been developed for resistance against papaya ring spot virus. Now there are several studies going on where in England especially वो लोगों ने blight resistant potato develop किया है by introducing a gene into the potato variety. Then there are पोटैटो लीफ रोल वायरस के अगेंस्ट रेसिस्टेंट वेराइटी बनाया है. सो कोट प्रोटीन बाय इंट्रोड्यूसिंग कोट प्रोटीन. देन सो गिव एग्जांपल्स एट एवरी इंस्टेंस. सी जेनेटिकली मॉडिफाइड, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट में हर एक के नीचे एग्जांपल्स दो, कैसे है और क्या करता है, हाउ इट gives resistance और how वो वेराइटी कैसे डेवलप किया और वो कैसे काम करता है. जस्ट गिव एग्जांपल अंडर ईच पार्ट. देन कमिंग टू प्लांट फिजियोलॉजी, enumerate factors responsible for absorption of nutrients by plants. First part, explain the mechanism of absorption of nutrients. So nutrients कैसे absorb करता है? There are mainly three process. First mass flow hypothesis, second diffusion, third cation exchange. So second part के तो ये तीन हो गए. First part में you can gather the points from different aspects, क्योंकि ट्रांसपिरेशन को जो प्रोसेस इफेक्ट करते हैं वही प्रोसेस यहाँ पर भी इफेक्ट करेंगे. सो लाइट,
टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सॉइल वाटर लेवल, फ्लडिंग है या फिर ड्रॉट कंडीशन है, सॉइल प्लेंटी में वाटर प्लेंटी में अवेलेबल है, फ्लडिंग हो रहा है तब भी वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, या फिर पूरा ड्राई है तो वाटर है ही नहीं, सॉइल पीएच, क्ले कंटेंट. सो देर आर मेनी फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल. सो 2 पार्ट्स में है, ज़्यादा मत लिखना, 10 मार्क्स का ही है. सो मेक श्योर योर आंसर इज वेरी क्रिस्प एंड शॉर्ट. देन डिफाइन प्लांट न्यूट्रिशन, गिव एन अकाउंट ऑफ एसेंशियल बेनिफिशियल एलिमेंट्स एंड देयर स्टेटस इन इंडियन सॉइल्स. ये वाला जो पार्ट है ना, ये थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है, देयर स्टेटस इन इंडियन सॉइल्स. ये तुमको बुक में नहीं मिलेगा. नाउ ये तो प्लांट न्यूट्रिशन, इट इज अ स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड अदर कंपाउंड्स which are essential for metabolism or physiological process of plant and their availability. Then essential nutrients क्या हैं, कितने हैं, 16 लिख के प्लस 2 एक्स्ट्रा जो है essential elements ऐड हुए हैं, निकल एंड सेलेनियम, add them. Then ये जो सेकेंड वाला beneficial elements भी, सो एसेंशियल एलिमेंट्स बताओगे, उसके बाद बेनिफिशियल एलिमेंट्स एग्जांपल्स देते हैं, वेनेडियम, ओके, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन. एग्जांपल्स के साथ सिलिकॉन में, सिलिकॉन गिव्स स्ट्रेंथ. ये ज़रूरी नहीं है, इनके बिना लाइफ साइकिल होगा, लेकिन दे बेनिफिट द प्लांट इन सम वे. गिव विथ एग्जांपल्स. और क्या, कैसे, क्या रोल करता है. जैसे फर्न्स में एल्यूमिनियम का, दे हैव एन इंपॉर्टेंट रोल इन केस ऑफ फर्न्स. Then their status in Indian soils. अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है. सी, इसमें बहुत सारे डिफाइन प्लांट न्यूट्रिशन एक पार्ट हो गया, गिव एन अकाउंट ऑफ एसेंशियल एंड बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स, ये सेकेंड पार्ट. नाउ थर्ड पार्ट उनका स्टेटस क्या है इंडियन सॉइल्स में. नाउ ये जो पार्ट है, थर्ड पार्ट, ये तुमको टिपिकली टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलेगा. इफ यू हैव रेड सॉइल्स ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, सॉइल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुमने सॉइल्स ऑफ इंडिया पढ़ा है तो अगेन अलुवियल सॉइल्स, जो मेन सॉइल तुम अलुवियल सॉइल्स में कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं और कौन से न्यूट्रिएंट्स में वो डेफिशिएंट है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या है, पीएच का जनरल पीएच रेंज क्या होता है उसके अंदर. सो अगर ये तुमने पार्ट्स पढ़ा है सॉइल्स ऑफ इंडिया, देन यू कैन फॉर्म योर आंसर. तो धीरे धीरे अपना आंसर फॉर्म कर सकते हो. जनरली इंडियन सॉइल्स आर डेफिशिएंट इन एनपीके, ऑल macronutrients, even secondary nutrients, NPK, calcium, magnesium, sulfur and organic matter भी deficient है Indian soils में. So ये तो common है. Indian soils are also deficient in boron, iron, zinc, copper, manganese, molybdenum. In most parts of the country, they are deficient micronutrients. Now इसके अलावा अगर तुम points लिखना चाहते हो तो case study है. So there was a study where 2,50,000 samples were taken throughout the country and 48% of the samples were deficient in zinc, 33% were deficient in boron, 13% were deficient in molybdenum, 12% were deficient in iron, 5% were deficient in manganese, 3% were deficient in copper. So overall अगर तुम पिक्चर देखते हो ना, Indian soils are deficient in, most of the soils are deficient in micronutrients. Indian soils are generally deficient in macro and secondary nutrients. So that is the case. तो टिपिकली टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, रिसर्च पेपर्स ढूंढो, कहीं स्टडीज होंगे, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ने किया होगा, वहां से तुम अपने आंसर को और जस्टिफाई कर सकते हो. अदरवाइज सॉइल्स ऑफ इंडिया में जो पॉइंट्स है ना, जैसे अलुवियल सॉइल को अगर तुम लोगे तो ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता है, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है, कैल्शियम ज़्यादा होता है, ओके. अदरवाइज अदर न्यूट्रिएंट्स आर डेफिशिएंट. रेड सॉइल्स में क्या केस है. सो फॉर्म योर पॉइंट्स फ्रॉम द सॉइल्स ऑफ इंडिया, वहां से. देन डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स एंड सिंथेटिक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. ना ये तो पहले से ही है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और प्लांट हार्मोन्स में क्या डिफरेंस है, बहुत पहले से पूछ रहे हैं. C3 एंड C4, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है. अब इनका तो नोट्स रेडी. सी, जो डिफरेंसेस लास्ट 10 ईयर्स में पूछा है ना, उनको सेपरेटली नोट कर लो और उनके डिफरेंसेस बना लो.
ओके वो तो मैंने पहले से ही लिस्ट दिया है यूट्यूब में एवोल्यूशन के, उसमें वीड साइंस का जो पोर्शन है हमने डिस्कस किया है वहाँ पर ऑलरेडी होगा, लिस्ट बनाया होगा, वहाँ से निकाल लो और बना लो इनके डिफरेंसेस, नोट्स तैयार करके रख लो डिफरेंसेस का। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस, ये तो पता ही होगा सब लोगों को। Now give a brief account of effects of drought and stress, drought and soil stress on the growth of plants. So दो है, एक तो drought and soil stress। तो स्ट्रेस फिजियोलॉजी वाले पार्ट से है ये। स्ट्रेस फिजियोलॉजी में अगेन वाटर स्ट्रेस, हाई टेम्परेचर स्ट्रेस, लो टेम्परेचर स्ट्रेस एंड सॉइल स्ट्रेस, ये चार पार्ट्स तो तुमको एटलीस्ट पढ़ना पड़ेगा स्ट्रेस फिजियोलॉजी में। नाउ कमिंग टू ड्रॉट स्ट्रेस, ड्रॉट से क्या होगा, वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, सो प्लांट विल नॉट बी एबल टू एब्जॉर्ब मोर वाटर, पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, सो सेल विल नॉट हैव ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर, टर्गार प्रेशर, सेल्स विल लूज द टर्गार, यानी फ्लैसिड हो जाएंगे सेल्स, सेल्स विल नॉट बी बल्ज्ड, दे विल बी फ्लैसिड। टर्गार लूज होगा तो लीफ एक्सपैंड नहीं होगा, लीफ एक्सपैंड नहीं होगा तो लीफ एरिया कम हो जाएगा, राइट, डिक्रीज इन द लीफ एरिया, इनिबिशन ऑफ क्लोरोफिल एंड एंजाइम एक्टिविटी, वाटर कम हो जाएगा तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी लॉस हो जाएगा, विल्टिंग शो करेगा प्लांट। देन एक्यूमुलेशन ऑफ एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड एक्यूमुलेट होने लग जाएगा एंड लीफ शेडिंग होगा टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन बिकॉज प्लांट इज नॉट एबल टू एब्जॉर्ब वाटर। डिक्रीज फोटोसिंथेसिस, ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट्स एंड respiration in the plants, stimulation of leaf abscission, leaf shedding, those are all the effects of drought. Then salt stress में आओगे तो osmotic stress, accumulation of chloride ions will prevent the absorption of water and it may cause succulence in the plants. तो ट्रांसपिरेशन एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा तो ट्रांसपिरेशन भी कम हो जाएगा एंड लीव्स सक्यूलेंट बन जाएंगे, क्लोराइड्स, एंड ये तो इनडायरेक्ट इफेक्ट है by preventing the absorption of water. Direct effect भी है leaf burning, okay, direct injury, leaf edge burning, necrotic spots and chlorophyll bleaching, they are the indirect effect of। तो इनको expand करने की क्या होता है, कैसे होता है। Last one is defined plant growth regulators, elaborate their application with suitable examples. Now application of plant growth regulators in agriculture, सेम वही है, बस लैंग्वेज चेंज हो गया है। सो प्लांट प्रोपगेशन में यूज करते हैं ऑक्सिन्स फॉर इंडोल ब्यूटेरिक एसिड जनरली यूज होता है फॉर रूट इनिशिएशन, देन इथिलीन फॉर राइपनिंग, देन नैप्थलीन एसिटिक एसिड फॉर प्रिवेंशन ऑफ फ्रूट ड्रॉप, फ्लावर प्रोडक्शन, फ्लावर को प्रमोट करने के लिए भी NA यूज करते हैं, राइट, देयर आर मल्टीपल यूजेस, ओके। सो सेक्स रेगुलेशन इन द कुकुम्बर्स, या फिर अलग एग्जांपल्स दे सकते हो, यूनिफॉर्म फ्लावरिंग पाइनएप्पल का एग्जांपल दे सकते हो, देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स वेयर इंक्रीजिंग द साइज ऑफ बेरीज, गिबरलिक एसिड यूज करते हैं ग्रेप्स के केस में। सो एप्लीकेशन ऑफ प्लांट हार्मोन्स इन एग्रीकल्चर वही है, बस लैंग्वेज चेंज हो गया, सूटेबल एग्जांपल्स भी देना है तुमको कहाँ पर कौन सा वाला हार्मोन यूज करता है, राइट। दैट वाज अबाउट प्लांट फिजियोलॉजी। नाउ जनरल अवेयरनेस में आओगे तो now this time general awareness was pretty simple, डायरेक्ट क्वेश्चंस आया है, दो पार्ट्स तो सीधा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से है, राइट, ये तो पूरा पीडीएस है, ये तो जीएस का है क्वेश्चन है, दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम जनरल स्टडीज। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक अच्छे से कवर करो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है एंड टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कब आया 1997 में, कैसे, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टीडीपीएस कैसे डिफरेंट है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में, क्या इसमें न्यू चेंजेस आए, वो सारा पार्ट तुमको कवर करना है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से हर साल एक क्वेश्चन आता है, एटलीस्ट वन क्वेश्चन मिनिमम आएगा, एक से ज्यादा भी आ सकता है पर एक तो आएगा ही आएगा। पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 15 मार्क्स आया, सो ये टॉपिक अच्छे से कवर करो। जीएस में तो तुम ऑलरेडी कवर करते हो ये वाला। देन give an account of steps taken by the government to cope with the constraints in procurement and marketing of agriculture produce. So procurement के लिए तो हमको पहले से पता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, FCI,
स्टोर सेंट्रल वेयर हाउस एंड स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन फॉर स्टोरेज। मार्केटिंग के लिए तुम बहुत सारे पॉइंट्स ले सकते हो। अभी रिसेंटली 2 न्यू लॉस आए हैं, ओके, APMC एक्ट है, प्रॉपर रेगुलेशन मिडिल मैन को निकालने के लिए, और जो भी माल प्रैक्टिसेस होते थे वहाँ पर उसको रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे मेजर्स दिए ऑलरेडी मार्केटिंग में। देयर इज लॉट ऑफ स्टफ विच यू कैन राइट हियर। बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर तुम लिख सकते हो मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। तो रीसेंट लॉस से लेकर APMC से लेकर जितने भी हैं वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर तुम डाल सकते हो। देन ये भी नॉर्मल GS का क्वेश्चन है, सीधा सीधा GS से उठा के दिया है। ये वाला पार्ट जो है, व्हाट आर द मेजर कंस्ट्रेंट्स ऑफ फूड प्रोडक्शन इन इंडिया, दिस पार्ट इज प्रिटी जनरल। यहां पर तुमको क्या है ना, यू कैन राइट एनीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम लो प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन सॉइल्स, मार्जिनल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ज़्यादा हैं, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, excessive use of underground water table has led to depletion of water table, या फिर और लो हो गया है। Soils have become unproductive because of soil erosion और unjudicious use of, unjudicious बोलते हैं, non-judicious बोलते हैं, non-judicious use of fertilizers और pesticides, climate change, ओके, इरिगेशन अवेलेबिलिटी। तो इंडिया में ओनली 33% ही इरिगेटेड है, बाकी पूरा रेनफेड है। सो इंडिया में फूड प्रोडक्शन के कंस्ट्रेंट्स में बहुत कुछ लिख सकते हो तुम। यू कैन राइट एनी पॉइंट एंड इट विल बी समवेयर वैलिड। क्यों फूड प्रोडक्शन कम है इंडिया में? तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इंडिया में फार्मर्स पूर है, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं, टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा, मैकेनाइजेशन ज़्यादा नहीं है, देन सॉइल्स अनप्रोडक्टिव सॉइल्स हैं, इरिगेशन अवेलेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज है, बहुत सारे पॉइंट्स, एक्सटेंशन ठीक से नहीं है, उन सारे पॉइंट्स यहाँ पर जितने भी वो लिख सकते हो। देन हाउ विल नेशनल फूड पॉलिसी हेल्प इन सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी? सो नेशनल फूड पॉलिसी, इंडिया का नेशनल फूड पॉलिसी पता होना चाहिए क्या है, मेन पॉइंट्स क्या है इंडियन नेशनल फूड पॉलिसी में। फर्स्ट, इंक्रीज इन द फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करना इज वन ऑफ द मेन पॉइंट। कैसे? बाय डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज, उनका हाई यील्डिंग वेराइटीज डेवलप करो और फार्मर्स को दो, सो दैट द यील्ड विल इंक्रीज। ओवरऑल यील्ड इंक्रीज करना है, यील्ड इंक्रीज होगा तभी तो तुम्हारा ओवरऑल प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, फूड सिक्योरिटी। सेकेंड, we are also importing lot of grains from outside, I mean from other countries for our food security. pulses हो गया, even cereals, non basmati rice हम लोग import करते हैं। so in case of some crops we are still not self sufficient, so we import। पहला तो increase in the crop production so that जो मेन फूड ग्रेन्स है वो हमारे पास सरप्लस में होना चाहिए। दूसरा, इंपोर्ट करो जो नहीं है, दैट इज ऑल्सो अनदर पॉलिसी। थर्ड, प्रोक्यूरमेंट थ्रू मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट इज प्रोक्यूरिंग देम, प्रोक्यूर कर रहा है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारे पास, फेयर प्राइस शॉप्स हैं। उसके बाद स्टॉक, ओके, बफर स्टॉक मेंटेन करता है ताकि अगर मार्केट में प्राइस इंक्रीज होगा तो उसको नीचे लाने के लिए गवर्नमेंट आल्सो मेंटेन्स बफर स्टॉक। देन वी हैव इंस्टीट्यूशंस लाइक CACP, FCI, several other institutions, ICAR, which are involved in production and procurement और distribution, इन सब के लिए है। so there are इंडियन फूड पॉलिसी में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सो इन सारे पॉइंट्स को तुमको मेंशन करना पड़ेगा। थ्रू ऑल दीज थिंग्स वी कैन इंश्योर
फूड सिक्योरिटी. सो दैट वाज अबाउट, ये जीएस के क्वेश्चन है डायरेक्टली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोक्योरमेंट में क्या कंस्ट्रेंट्स है ये सारे. देन डिस्कस द रोल ऑफ role of nutri cereals in managing malnutrition in India. Now 2018 was declared as year of nutri cereals या year of coarse grains. Now government has renamed coarse grains, they have changed the terminology. गवर्नमेंट ने कोर्स ग्रेन्स से बदल के उसको न्यूट्री सीरियल्स कर दिया. सो इंस्टेड ऑफ कोर्स ग्रेन्स द टर्मिनोलॉजी हैज़ बीन चेंज टू न्यूट्री सीरियल्स. इसमें ज्वार, बाजरा, फॉक्सटेल, रागी, ये सारे जो मिलेट्स हैं कोर्स ग्रेन्स, दे आर ऑल नाउ न्यूट्री सीरियल्स. वाई, उनका क्या इंपॉर्टेंस है? डिस्कस द रोल ऑफ न्यूट्री सीरियल्स इन मैनेजिंग malnutrition in India. अब न्यूट्री सीरियल्स, there are many benefits of nutri cereals. See, first they have minerals, more minerals than your normal staple food. तो राइस और उससे कंपैरिजन में ज़्यादा मिनरल्स है. दूसरा, उनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होता है, यानी शुगर पेशेंट्स उनके लिए अच्छा है. ओके. देन थर्ड, दे कैन बी इजीली ग्रोन इन ड्रॉट प्रोन एरियाज. उनको इरिगेशन ज़्यादा वो सब ज़रूरत नहीं है, इजीली ग्रो हो जाता है. क्लाइमेट चेंज और प्रेजेंट सिनेरियो में, प्रेजेंट क्लाइमेटिक सिनेरियो में और हमारे क्या बोलते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द एरिया 66% एरिया इज रेन फेड. सो ये सारे कंडीशंस को सूट करता है. इवन गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इंक्लूड न्यूट्री सीरियल्स और कोर्स ग्रेन्स इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. पीडीएस में जो है उसमें इंक्लूड करने के लिए डिसाइड कर लिया है. सो बिकॉज दे हैव मोर मिनरल्स, ओके, दे आर लेस इन ग्लाइसीमिक इंडेक्स, बेटर फॉर डायबिटिक, इवन फॉर डायबिटिक पीपल, दे कैन बी इजीली ग्रोन. ओके. और रेन फेड एरियाज में इजीली ग्रो होता है विदाउट मच केयर. दे डोंट नीड सेपरेट इरीगेशन. ड्रॉट प्रोन एरियाज प्लस क्लाइमेट चेंज, इस कंडीशंस में भी प्रेजेंट सिनेरियो जो है, ड्रॉट्स आर वेरी कॉमन, रेनफॉल का कोई गारंटी नहीं है, ज़्यादा कम हो रहा है. तो ऐसे कंडीशंस में न्यूट्री सीरियल का रोल और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. प्लस गवर्नमेंट है ऑल्सो. और बस तुमको ये बताना है कि ज्वार, बाजरा, इसमें कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना फैट है, क्या मिनरल्स क्या है, बस जस्ट मेंशन ज्वार, बाजरा एंड रागी और उसमें क्या क्या है वो मेंशन कर दो. एंड 2018 में डिसाइड किया था कि इसको ईयर ऑफ न्यूट्री सीरियल्स बोल के गवर्नमेंट ने अनाउंस किया. बस वो पॉइंट्स लिख के स्कोप क्या है इसका, इंपॉर्टेंस क्या है, वो लिख दोगे तो हो जाएगा तुम्हारा. ज़्यादा नहीं है, 10 मार्क्स का पूछा है. सो ये तीनों जो हैं ये तो जीएस से सीधे, तो टोटल कंप्लीटली जीएस है. फूड पॉलिसी मालूम होना चाहिए इंडिया का तुम्हारा, सेकेंड पार्ट एटलीस्ट. ये तो जीएस में भी आता है फूड पॉलिसी. देन अगेन मार्केटिंग में और प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रेंट्स जो है उनको अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं. सो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं. सो दैट वाज अबाउट हॉर्टिकल्चर, प्लांट प्रोटेक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी एंड जनरल अवेयरनेस. सो पेपर डिफिकल्टी अगर मैं बात करूँ तो आई वुड से मॉडरेट. बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था और इजी भी नहीं था. ऐसा नहीं बोल दूंगा कि हाँ बहुत ही सिंपल है. देर वर सेवरल क्वेश्चंस विच आर डायरेक्ट, बट देर आर क्वेश्चंस विच हैड मेनी पार्ट्स. सो एवरेज पेपर था, ज़्यादा इजी नहीं था, ऐसे ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था. सारे टॉपिक्स, थोड़े क्वेश्चंस ऐसे थे थोड़े इनोवेटिवली पूछा है उन लोगों ने. जैसे प्लांट पैथोलॉजी का क्वेश्चन है, थोड़ा इनोवेटिव है, राइट. थोड़े अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस हैं, इंडियन सॉइल्स में उसका न्यूट्रिएंट स्टेटस बताओ. देयर वर सम न्यू क्वेश्चंस, ओके, बट ओवरऑल इफ यू से पेपर वाज एवरेज. सो दैट वाज अबाउट द लास्ट ईयर्स पेपर. So thank you very much. Goodbye.